Good morning. Let's start the English chapter number 10, Malu Bhalu. It is given on the page number 161. So let's read about Malu Bhalu. High up in the icy lair lived a little polar bear. Snow White Snow Bright was her name. Malu Bhalu was her name. So here you can see Malu Bhalu, one sheep, one uh, bear is there, है ना? एक bear था polar bear, उसका नाम क्या था? मालू भालू, है ना? तो वन मालू भालू किसका नाम था? मालू भालू polar bear. Okay, her name was Malu Balu, and her man का मतलब क्या होता है? MANE, main का मतलब होता है long hair on the neck of some animal. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसके नेक पे बड़े बड़े से बाल होते हैं ना, उससे मैन कहते हैं. तो यू हैव टू राइट ओवर हियर. ओके, कुछ एनिमल के जो लंबे लंबे हेयर होते हैं वो कौन से कलर के थे? तो स्नो वाइट स्नो ब्राइट, तो स्नो के जैसे ब्राइट थे. मतलब स्नो मतलब क्या होता है? बर्फ. तो बर्फ के जैसे वाइट उसके हेयर थे और बर्फ के जैसे ब्राइट भी थे, चमकते भी थे उसके हेयर, है ना? एंड सी वाज लिविंग आइसी लेयर. तो एकदम आइसी लेयर जो होता है ना, एक प्लेस होता है जहां पे बर्फ बर्फ रहता है पूरा, है ना? तो आइसी लेयर में वो पोलार बेयर रहता था. तो हियर लेयर का मतलब क्या होगा? वाइल्ड एनिमल्स लाइंग प्लेस, मतलब एक प्रकार की जगह जहां पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, है ना? लेयर, तो वन प्लेस where wild animal lives. Okay. Very soon our Malu Balu learned the things her parents knew. Fish to catch, big and small. Malu was a clever girl. So you have to underline this sentence. Malu was very clever girl. वो बहुत ही intelligent थी. So he learned all the things that her parent knew. है ना? जो उनके पेरेंट्स को आता था ना, वो सारा मालू बालू को भी आ गया, because she was very intelligent. So she as soon as she copied all the things from her parents, है ना? She also learned how to catch fishes and also learn to catch big and small fish. So Hallie, underline this sentence. Which kind of things that Malu Balu learned from his her parent? तो आपको लिखना पड़ेगा what kind of things, क्या क्या उसने सीखा था? तो catching fish to catch small and big. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि she learned from her parents that to catch fish, है ना? फिश कैच करना मतलब फिशेस पकड़ना उसे आता था. Manu said to her mother one day, "Ma, I'm going far out of to play. I want to see the things that lie." तो मालू ने उसकी मम्मी को बोला, मालू said that to her mother that, "Mama, I want to go far outside to play. I want to play, but outside, very far away. I want to go to play outside. I want to see the things that lie." And Malu also want to see. Malu Bhalu also want to things that lying on the earth, है ना? जितनी भी अर्थ पे अलग अलग चीजें हैं वो सब उसको देखना था. तो she is very curious also, है ना? Curious थी वो, eager थी सब जानने के लिए. So Malu Bhalu also eager to know all the things that are lying on the earth. Now next stranger, there beyond the big blue sky, a little patience. Child said, "Mom, in the summer van, next it's come summer patience.
what a taste मालू simply could not reach। तो देखो यहाँ पे स्टेंजा में क्या बताया, that beyond the big blue sky, उसको देखना था कि पूरे ब्लू कलर का जो स्काई होता है ना उसके नीचे क्या क्या है, तो she want to know this and a little patient child said mom। तो मालू बालू की मम्मी ने बोला कि थोड़ा धीरज रखो, पेशेंस का मतलब क्या होता है, धीरज रखना है ना, लिटिल पेशेंस मतलब थोड़ा धीरज रखो, अभी आप तो बहुत ही छोटे हो, थोड़ी बड़ी हो जाओ, इन द नेक्स्ट समर वी विल गो टू सी दिस एक्सपोजिशन, हम नेक्स्ट समर में जाएगी ये सब देखने के लिए। उसकी मम्मी ने बोला कि पेशेंट, यू हैव टू मेक पेशेंस, है ना, पेशेंस बनाए रखो, धीरज बनाए रखो, अभी नहीं जाना है। Summer, patience, what it is? Malu said to her mother then, I can't wait for summer. I can't wait. What is the patience? I don't know about the patience. मुझे तो धीरज धीरज कुछ रखना आता नहीं है, पता भी नहीं है। And I can't I can't wait for the next summer. Next summer कब आएगा? I can't wait for it. I want to go to check all the things, I want to play outside, मुझे तो बाहर निकलना है, मुझे फिश पकड़नी है, मुझे ये सब करना है ना। मालू simply could not rest, तो मालू तो आराम कर ही नहीं पा रही थी, उसे तो सब देखना था। She was very good to know all the things। Next, turn the page, next page is first thing first, Malu's mom clasped Malu tight within her arms. Then she said her voice was firm, now my dear, you will have to swim। तो अभी मालू की मम्मी को पता चल गया कि मालू फालू तो अब रुकने वाली है नहीं, तो पहली चीज को पहले करते हैं। तो मालू की मम्मी ने क्या किया, उसको क्लैप्स मतलब अपने बाहों में जकड़ लिया, मतलब बहुत ही लवेबल थी उसकी डॉटर मालू फालू पोलर बेयर, तो उसकी मम्मी ने उसे होल्ड क्लोजली एकदम होल्ड कर लिया, है ना। तो क्लैप्स का मतलब होता है होल्ड करना। देखो बुक में Malu's mother said to Malu that first thing first you have to do। Then she said that her voice was free। Now my dear you will have to swim। तो आपको क्या करना है, अभी तो स्विम करना है। ओके, हर वॉइस वाज फ्रेम, फ्रेम का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। मजबूत आवाज में उसकी मम्मी ने बोला कि नाउ माय डियर यू हैव टू स्विम। आपको क्या सीखना है, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट डू, मतलब पहले जो चीज पहले होती है वो पहले करना है। तो सी हैज टू स्विम फर्स्ट, है ना, पहले तैरना सीखना है। बट मां सेड मालू व्हाट डू आई नो, हाउ विल I have never swum before। Don't worry dear, said Malu's mother, do as I do। That's all, she advised her। Malu's mother advised to Malu that you have to do as I do, है ना, जैसे मैं करती हूँ, जैसे मैं स्विम करती हूँ ऐसे आप करने लगो। मालू ने बेटा बोला कि what do I know, मुझे क्या करना है, मुझे तो पता नहीं है। how will I do swim, मैं कैसे तैरूं, मैंने तो पहले कभी तैरना सीखा ही नहीं है। I have never swum before, पहले मैं कभी तैरा ही नहीं हूँ। Don't worry dear, मालू की मम्मी ने बोला चिंता मत करो, I will teach you। Do as I do, जैसे मैं करती हूँ as you आपको भी करना है, as you do। She had no choice, no other way। Malu had to swim that day। Tight she gripped her mother's hand, into the water splashed to land। देखो नेक्स्ट स्टेंजा में क्या लिखा है, she had to no choice, she had no choice। Now Malu has no any choice, he has to swim first, no other way, because her mother tells her that you have to swim first। And here in this poem, Malu followed all the advices of her parent। We should also follow our parents advices, है ना। खाली हमें भी हमारे पेरेंट्स जो एडवाइस देते हैं ना, हमें भी मालू की तरफ फॉलो करना चाहिए। She followed her mother's choice, है ना, पहले आपको स्विमिंग सीखना है।
स्विमिंग सीखना है तो आपको स्विमिंग ही सीखना पड़ेगा। तो पेरेंट्स एडवाइस शुड फॉलोड बाय ऑल चिल्ड्रेन, ना मम्मी पापा की जो विशेष होती है एडवाइसेस होती है वो सारी हमें फॉलो करनी चाहिए। तो मानो ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड वेरी टाइटली। ग्रिप्ड का मतलब क्या होता है, पकड़ना। तो पहले पहले तैरना सीख रही थी तो अपना मम्मी का हाथ जो था ना वो बहुत ही टाइटली होल्ड किया, मतलब पकड़ा। Into water splash to land, और अब पानी में तैरने लगी। स्प्लैश स्प्लैश करके पानी का आवाज दिया है। Brave mothers, brave young daughter, doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It didn't matter wrong or right. देखो, ब्रेव मदर ब्रेव डॉटर, उसकी मदर ब्रेव थी, बहुत ही पावरफुल थी। ब्रेव का मतलब पावरफुल होता है ना, तो उसकी डॉटर मालू भालू जो थी ना वो भी बहुत पावरफुल थी। डाउट और फियर, डाउट मतलब चिंताएं होती है, शक होता है। फियर, फियर का मतलब क्या होता है, डर। फियर मतलब डर। वो सब तो वो पीछे ही छोड़ के आई थी। दैट मींस सी फॉरगेट ऑल अबाउट फियर एंड डाउटनेस, है ना। जो भी डाउट था, कैसे सीखोगी क्या सीखोगी, सब कुछ भूल के वो तो खाली एक ही चीज उसको याद थी, मुझे तैरना है। तो डर जो था वो सब उसने पीछे छोड़ दिया, मतलब सब भूल गई, डर वर भूल गई। मालू स्विम विद ऑल हर माइट, बहुत ही ताकत से उसने तो स्विम करना स्टार्ट कर दिया। इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट, वो अच्छे से कर रही थी गलत तरीके से कर रही थी, कुछ भी उसने सोचा नहीं। शी डिडंट मैटर, देयर इज नो एनी मैटर। शी माइंडेड दैट आई स्विमिंग रॉन्ग एंड राइट वे, देयर इज नो एनी मैटर, है ना। शी स्वैम ऑन हर वे, वो अपने तरीके से तैरने लगी। But swimming came to naturally. Her mother knew this and all could see. Fearless was Malu. This she knew. Not just brave, but special too. So here swimming came naturally. Swimming सिखाई नहीं जाती। जो animals होते हैं ना, water animals, उनको कोई सिखाता नहीं है क्योंकि वे naturally होता है ना। हमें गॉड गिफ्टेड होता है। हमारे मम्मी पापा को जो आता है वो हमें गॉड गिफ्टेड होता है कि हमें आ जाता है। तो दैट इज नेचुरली टू स्विम। तो ये नेचुरल थिंग है। बट her mother so knew that Malu is very special girl. बट मालू भालू जो था ना उसे तो नेचुरली स्विमिंग तो आता ही था, बट सी वाज वेरी स्पेशल टू, वो बहुत ही स्पेशल चाइल्ड थी अपने मम्मी पापा की, क्योंकि वो बहुत फियरलेस थी, वो डाउटलेस थी। सी वाज वेरी माइटी, बहुत ताकतवर थी। सी वाज वेरी क्लेवर, वो बहुत ही होशियार थी। सी फॉलो ऑल द एडवाइसेस ऑफ हर पेरेंट्स, वो अपने मम्मा पापा का कहना भी मानते थे। This way, Manu Balu was very special polar bear, है ना, बेबी बेयर। वो जो थी ना वो बहुत ही स्पेशल बेबी बेयर थी। जस्ट ब्रेव, बहुत ही ताकतवर थी, और वो फियरलेस थे, वो उसकी मम्मा जानती थी। So this is translated. This poem is translated from Hindi by Sandhya Rao, expert from Malu Balu by Kamla Vasi. ओके, ये भी इसमें लिखा है कि कहां से एक्सपर्ट किया है, कहां से लिया गया है पार्ट। ओके, सो दिस पोम इज डन। नाउ यू हैव टू राइट डाउन द न्यू वर्ड्स इन योर इंग्लिश नोटबुक एंड क्वेश्चन आंसर आल्सो आई विल सेंड द पीडीएफ दैट from that pdf you have to write down the question answer also. Okay, we'll meet tomorrow with the new chapter. Okay Hali, if there is any query so you can ask. Bolo Hali. Okay. Hali, if there is any query so you can ask. समझ में आई poem? Yes. Okay, and enjoyed it or not? Have you enjoyed the poem? Yes. Okay, I also enjoyed the poem, है ना मालू मालू? So there is एक हमें इसमें से मैसेज मिलता है ना मालू मालू में से। कौन सा मैसेज मिलता है? We should follow all the advices of our parents. हमारे मम्मी पापा की एडवाइस हमें माननी चाहिए, है ना। As मालू बालू, जैसे मालू बालू ने स्विमिंग करना स्टार्ट किया ना वैसे। Okay, so I will send the PDF. You have to read the question answer and write also. Okay हरी, नोटबुक कंप्लीट कर देना है। Okay. कल मिलेंगे तो